जैसे हम अपने माँ बाप को नमन करते हैं। तो संघ सर्वोपरि है। आपको पता होगा कि जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे और वो 1000 हल उनके घर चला करते थे, इतने बड़े वो जमींदार थे, और उस समय उनको सजा हुई संघ हाथ में, और जब सजा हुई तो कोई भी आदमी संघ से ऊपर नहीं था, उनको सजा माननी पड़ी और वो संघ को नमामि उनको करनी पड़ी। उनके पिता ने भी विद्रोह नहीं कर पाए, राजा पसंद नहीं कर पाए। ये भिक्षु संघ की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भिक्षु संघ के अंदर भी कितना ही बड़ा भिक्षु हो, वो अपने संघ को नमन करता है, भिक्षु को नहीं करता, भिक्षु संघ को। और हम तो दान देते हैं, भिक्षु संघ को देते हैं, इनके भिक्षु को नहीं देते सर। तो संघ सर्वोपरि है, इसलिए संघ नमामि है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम अपने गुरुचांद ठाकुर को नमन करें, हम अपने हरिचंद ठाकुर को नमन करें, हम अपने जोगिंद्रनाथ मंडल को नमन करें, हम अपने डॉक्टर अंबेडकर को नमन करें, हम अपने पेरियार साहब को नमन करें। हमारे 250, 300, 400, 500, 10,000 महापुरुष हैं। तो किसी एक व्यक्ति को अगर संघ नमन करता है तो व्यक्तिवाद में आता है, पर अगर वो भी सब संघ में आते हैं और एक साथ नमन करता है तो उन सारे पुराने संघों को जो पहले थे और जो आने वाले संघ है और जो संघ चल रहे हैं उनको एक साथ नमन हो जाता है, तो सारे महापुरुषों को नमन हो जाता है, तो छोटा बड़ा खत्म हो जाता है। अभी हम यहाँ से भी एक बात कह दें, गुरु हरिचंद ठाकुर को नमन है, तो लोग कहेंगे अरे आपने गुरुचांद ठाकुर को नमन किया नहीं, आप तो कुछ जानते नहीं। अम्बेडकर वाले कहेंगे अरे आप तो अम्बेडकर को छोड़ दिए। कई लोग कहेंगे अरे यार अम्बेडकर को आपने पहले नहीं किया, गुरुचांद ठाकुर को पहले कर दिया। कोई कहेंगे अरे जोगिंद्रनाथ मंडल का था, यहाँ पे सब चलता है, उनको तो आपने याद भी नहीं किया। एक मतलब बेकार की बात, झगड़ा। और 250 लोगों को हम याद नहीं रख सकते, और उनका नियम नहीं है हमारे पास में कौन छोटा कौन बड़ा, क्योंकि हमारे संघ में सब छोटे बड़े बराबर हैं, समान है, क्योंकि ये सम है, सम के बाद रहे, इसका मतलब समता पे आधारित है। जैसे सम विधान होता है, समता पे आधारित विधान, इसलिए एक ही सूत्र है। पहले भी संघों को नमन होता था, और संघों को जब हम नमन करते हैं तो सबको एक साथ नमन हो जाता है और खुद को भी हो जाता है। साधु साधु साधु। আমি ব্যারাকপুর পলতা থেকে এসেছি। আমার নাম ডক্টর বিরূপাক্ষনাথ বৈদ্য। আমি ছোট ছোট 3টা পয়েন্ট আমি উল্লেখ করব। 6 নম্বরে আছে পঞ্জিকাকরণ বা নিবন্ধীকরণ কখনো নয়। তাহলে এই যে সমন সংঘ, এটা কি গভর্নমেন্টের কোনো অর্গানাইজেশন কাছে কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই কি? প্রথমটা হলো আমার একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয়, একবার বলা হয়েছে আগে যে এই ধরনের অনুষ্ঠানে বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয়েছে কখনো ডাকা হবে না। আমরা তো সবাই ভারতবাসী এবং আমরা আমাদের উন্নতি করার চেষ্টা করব, আপলিপমেন্টের এবং সার্বিকভাবে আমরা পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবো। সবাই ভারতবাসী হিসেবে ভারতে বসবাস করব, সেক্ষেত্রে উন্নতির ডাকা হবে না, এই জায়গাটা কেন আমি বুঝতে পারিনি। 3 নম্বর, আরেকবার বলা হয়েছে যে হরিচাঁদ পুরচাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নবসূত্রদের বাদে বিশেষ করে উচ্চবর্ণের কোনো লোককে ডাকা হবে না। হরিচাঁদ পুরচাঁদ ঠাকুরের উচ্চবর্ণের অনুসারী ছিলেন, নামগুলো বলে গেছি, কয়েকজন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা তার অনুসারী ছিলেন, অক্ষয় চক্রবর্তী। সেক্ষেত্রে হরিচাঁদ পুরচাঁদ সব মানুষকে নিয়ে মানুষ হওয়ার কথা বলেছেন, সাম্যের কথা বলেছেন, প্রেমের কথা বলেছেন। তাহলে এই কথাটা আমি ভালো বুঝতে পারলাম না। আমি এই 3টা পয়েন্টের উপর উল্লেখ করলাম, দয়া করে একটু ব্যাখ্যা দিলে আমি। আপনার নামটা একটু বলে দিন। নাম ডক্টর বিরূপাক্ষনাথ বৈদ্য। আমি ব্যারাকপুর পলতা থেকে এসেছি। প্রথম প্রশ্ন, আপনার সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন কেন নেই? এখানে সংঘ হচ্ছে ভারতবর্ষের সমন হচ্ছে 120 কোটি। এখানে কোনো ব্যক্তি বিশেষ নেই, সংঘ ডিসাইড করে সঙ্গে বসে, এবং সংঘের সদস্য সম্বন্ধে 120 কোটি ভারতবর্ষে, যেটা 20 করোড় বলা হয়। সেইখানে কার নামে রেজিস্ট্রেশন হবে? পূর্বে যত সংঘ ছিল কার নামে রেজিস্ট্রেশন ছিল? সংঘ যখন কারো ব্যক্তি বিশেষ নেই, ব্যক্তিবাদ নেই, এখানে প্রকৃতি সংস্কৃতি যেটা ন্যাচুরাল, ভারতবর্ষে জল নদী জমি গাছপালা সবই হচ্ছে সঙ্গে, তো কার নামে করবে রেজিস্ট্রেশন? সেটা তো তাহলে সংঘের সংগঠনের ভিতর কোনো তফাৎ থাকলো না, বিভেদ নেই এখানে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এখানে যখন সমনদের এই সংঘ, বুদ্ধের সঙ্গে যখন জুড়েছিলেন তাকে আগে সেটাকে পালন করতে হয়েছিল, সেটা অনুসরণ করতে হয়েছিল, বুদ্ধের সেই আইডিওলজিকে ফলো করে সেখানে যেতে হয়েছিল। তখন সে ব্রাহ্মণ থাকে, হরিচাঁদের মতাদর্শকে ফলো করে মতুয়ার সবকিছুকে অবলম্বন করে তাকে এসেছিলেন অক্ষয় চক্রবর্তী, তিনি তখন ব্রাহ্মণ ছিলেন।
যখন সমন আসবে, সমন আইডিওলজি ফলো করবে, আগে সে সমন হতে হবে প্রকৃত কি সমন কি, এবং যদি প্রকৃত সমন হয়, এবং সমন কারা, ভারতে সমন কারা, আমাদের যেটা মূল নিবাসী বলি, বহুজন বলি, আদি সমন, কিন্তু বাকি ব্রাহ্মণ যারা আছে বাইরে থেকে, এরা কি সমন? তাহলে কেন হবে? আজকে আরএসএস এর মুখ্য দ্বারায় উদাহরণস্বরূপ দেখি, সমনদের কি স্থান আছে? তারা কি রাখে? কার্য করছে, কিন্তু আসল জায়গায় তারা রয়েছে। আর প্রশ্ন বলুন। আরে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে যখন ওইসব লোকেরা এসেছিলেন, সবাই রেকটিফাইড হয়ে আসেননি, আসার পরে রেকটিফাইড হয়েছে। কতজন এসেছিলেন? তারা কি এখনো সেইভাবে ছিলেন? তার পরম্পরায় সেটা কি জড়িয়ে আছে? সামাজিক প্রেক্ষাপটে সচেতন কিছু এসেছে, আমাদের বহুজন মুভমেন্টের ভিতর কিছু সামাজিক ব্রাহ্মণ, তারা আমাদের বিচারধারাকে বুঝতে পেরেছে, তারা ভাবনাকে চেঞ্জ করেছে। তাহলে সবাই কি আছে? তাহলে সবাইকে আমরা কি করে নেব? বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দল যেটা আছে, আমাদের দল কোনটা? আর বামনেদের কটা? সেই মুখ্য দ্বারায় কি আমাদের রেখেছে? তাহলে আপনি কোনটাকে গ্রহণ করবেন? হরিগুরুচাঁদ ঠাকুরের বেদ বিধির উঠতে সেটাকে নস্যাৎ করতে বলেছে, সেটাকে অবলম্বন করতে হবে, সেটাকে বাদ দিতে হবে। আমরা কোনটাকে মেনে চলবো? না। আর কোনো প্রশ্ন উত্তর? थैंक यू। अच्छा, हमें कुछ प्रश्न आए हैं सुरेश सरकार साहब से। एक है कि वो कहते हैं यहाँ पे राजतंत्र कब शुरू हुआ है, तो मैं चाहता हूँ सुधीराज सिंह। वैसे तो हमारा इस सवाल से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम राजा को मान्यता देते नहीं, हम तो संघ को मान्यता देते हैं। पर फिर भी यह है कि जब आप लोगों ने राजा को मान्यता दी होगी तो राजतंत्र स्थापित हो गया होगा। अब टाइम और घड़ी तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि उस समय सन नहीं था, टाइम नहीं था, और इतिहास भी बुद्ध के बाद लिखा हुआ है। तो कहीं मिलेगा तो सर अगली बार बता देंगे, इसके लिए तो इतना ही बोल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम कहते हैं कि 29 लाख संगठन मनुवादी के चमचे हैं, तो फिर 100 करोड़ जो हमारे समन भाई बहन हैं, वो समन संघ क्यों जुड़े समन संघ में? यही प्रश्न है ना? किसके प्रश्न है ये? यही प्रश्न है ना कि अगर इतने सारे 29 लाख चमचे हैं तो 100 करोड़ लोग समन संघ में क्यों जुड़े? इट इज पॉसिबल। हाँ, देखिए, ये तय कर लीजिए आप कि आप समन हैं या वमन हैं। समन संघ ये कहता है कि जो वमन नहीं है वो समन है। फिर ये तय कर लीजिए कि आपको संघ चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि संघ में आपको सुरक्षा मिलेगी, संघ में आपको विकास मिलेगा, और संघ में आपको जो सुख मिलेगा। तो आपको सुख चाहिए या नहीं चाहिए, विकास चाहिए या नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए नहीं चाहिए, ये तय करना है। तो हर व्यक्ति जो समन है पैदाइशी, और जो हॉस्पिटल में मरने के लिए तैयार है वो समन, उसका राइट है, बर्थ राइट है कि वो समन संघ का मेंबर है। एक्टिव और इनएक्टिव उसके हाथ में, पर अगर वो समन है तो वो राइट है। तो इट इज पॉसिबल कि 120 करोड़ लोग समन संघी हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। अब यार यहाँ बहुत सारे जिनको जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी हुई है, अभी तो समन संघ पहली बार पल्ले पड़ा है। फैक्ट तो ये है कि हमको ब्राह्मणों के संघ की जानकारी तो है, और हमें अपने संघ की जानकारी नहीं है कि हम पैदाइशी संघी हैं। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ता जा रहा है। 2.5 साल हुए हैं और पूरे देश में जगह जगह हैं, सिर्फ बंगाल तक भी आ गए हैं, और बंगाल के बाद आगे भी जाएंगे। आप भी लोग जाएंगे। आपको अगर सुख चाहिए, आपको अगर सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आपको विकास चाहिए, तो संघ ही गारंटी है। संगठनों में तो आपने सबने ट्राई करके देख लिया है, फिर भी किसी को लगता है कि ट्राई करके देखना है तो देखे, उसकी इच्छा है। भारत है, बाबा साहब का संविधान है, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट, उसमें कोई क्या कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये समन संघ जो है और आज जितना आदमी इधर आया है, इन लोग की सब आदमी या समन संघ को बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा मान के चलता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग चलता है, पंचशील हिसाब से चलता है।
इस कार्ड में बंतेरी। बंगला हिंदी दोनों ही है, हाँ। देख लीजिए। बंतेरी। मैं देखते बहुत कुछ थक गया, नहीं आप ठीक है, इसलिए चिल्ला के बोलता हूँ। नहीं आप लोग ये कार्ड ले लीजिए, हिंदी और बंगलानी से है। देखिए क्या है कि समन संघ ना एक सूत्रीय कार्यक्रम लेके चल रहा है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जहां नहीं जुड़े हैं वहां हारे हैं, जब जुड़े हैं जब जीते हैं, जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे, नहीं जुड़ेंगे हारेंगे। एक सूत्रीय कार्यक्रम है समन संघ का। तो समन संघ का जो पहला नियम है केवल सम, यानी कि ये सिर्फ ये देखता है कि व्यक्ति समन है या नहीं। हम प्यार से पूछ देते हैं, अभी सभा में पूछा नहीं गया, हम सभा में पूछ देते हैं कोई ब्राह्मण हो तो भाई प्लीज एक्सक्यूज, आपकी सभा आपका संघ हो रहा है, आप जाइए, ये संभव है। तो अभी क्या है कि 22 प्रतिज्ञा मानने का जो काम है ना, वो व्यक्ति का इंडिविजुअल है कि वो मानना चाहता है या नहीं। अगर वो अपने आप को एडमिट कराना चाहता है तो माने, उसे माननी पड़ेगी। कोई व्यक्ति जो गुरुचांद ठाकुर या गुरु हरचंद ठाकुर का अनुयायी अपने आप को बताता है, तो क्या वो एजुकेशन को फैलाता है या नहीं, या जो उन्होंने कहा कि मैं कुत्ते के झूठे का खा सकता हूँ, जो भी है वो अप्लाई करता नहीं करती, या वो इकट्ठा होने के लिए अप्लाई करता नहीं करता, या कोई योगेंद्रनाथ मंडल सर का अगर कोई ये कहता है कि मैं उनका अनुयायी हूँ तो उनके लिए उनके साथ से काम करता है या नहीं। तो हर एक महापुरुष की जो बातें हैं वो व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल है। जैसे यहाँ लोकमान अली है, लोकमान अली से हमने पूछा भाई आप समण हो, तो कहते फर्स्ट आई एम समण, बस आपका संघ है, आप बमण तो नहीं हो। अगर आपको लगता है कि लोकमान अली बमण है तो बता दें, आज इनका गुड बाय हो जाएगा। पर यहाँ वो किस पद्धति को फॉलो करते हैं, जीने के लिए कौन सी वो आराधना साधना तप वगैरह जो भी करते हैं या किस माध्यम में जाते हैं, वो उनका पर्सनल है। उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उनको आजादी देता है, हमारी तो औकात क्या है। और पुराने समन के अंदर भी मान्यता नहीं देखी जाती थी। आपकी मान्यता आपके इंडिविजुअल विकास के लिए है, अवनति के लिए है या उन्नति के लिए है, उसमें किसी व्यक्ति का कुछ नहीं है। पर संघ आपकी उन्नति की, आपकी प्रॉस्पेरिटी की गारंटी देता है, आपके सुख की गारंटी देता है। ये पहले भी सिद्ध हो चुका है, और देखो पहले सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, आप जिनसे परेशान हैं उनको देख लीजिए, वो संघ में है, इसलिए वो सुखी है, इसलिए उनके पास सब चीज है, इसलिए उनके पास बढ़िया पढ़ते हैं, उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, वो नौकरी देने वाले हैं, वो चलाने वाले हैं, वो सब चीज पे अधिकार रखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ वो संघ में है। आज अगर वो संघ से हट जाए खत्म हो जाएंगे। आप संघ में आ जाइए, वो सारे अधिकार आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि जहां नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहां जाता है। बोलिए, आप फुल नेम बोलते হ্যালো नेम बोलिए। সালাম সুজিত মজুমদার। আমার একটা প্রশ্ন, ভারতবর্ষের ৬৭৪৩টি জাতি ধর্মে বিভক্ত, সংঘ জাতি কিভাবে ধ্বংস হবে সংঘের মাধ্যমে? क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी सर। प्राचीन समय में कोई बता दे कब ये जाति का तैयार हुआ, जाति किसने बनाया? जाति पहले था नहीं। बुद्ध से पहले जो जैन धर्म है, बाद में बुद्धिस्ट है, बाकी सारे धर्म आए, और पहले जो 6746 जाति बनाए को तो था ही नहीं। जाति किसने बनाया? हमारा जाति जो बनाया गया, बांट दिया तो हमें अलग कर दिया। तो हम जाति को जो परिचय देते हैं तो भी तो अपने बटे हुए हैं। आप किसी ब्राह्मण से पूछना तुम्हारा जाति क्या है, वो बोलेंगे ब्राह्मण है, कभी नहीं बोलेंगे अलग अलग। जब हम पूछते हमारा जाति क्या है, हम नमशूद्र है, हम बोलते हैं हमारा जाति क्या पौंड है, अलग अलग जाति में हम ये बढ़वा हम दे रहे हैं। আমরা বলছি আমাদের জাতি বিভক্ত, তার মানে আমরা নিজেকেই আলাদা করে রাখছি। আমাদের জাতি এটাকে সমাপ্ত করার জন্য সংসদে 3টি নিয়ম নিয়ে এসেছে, জাতি অভ্যাস। এখান থেকে এখানে যারা আমাদের এসসি এসটি ওবিসি যে সমন, এখানে কেউ বলতে পারবে জিজ্ঞাসা করলে কোন জাতি, এখানে হয় না, জাতির কথা কেউ বলে না। কারণ আমাদের একটাই আইডেন্টিটি। এখানে এসসি এসটি ওবিসি যে বাবা সাহেব 3টে সবাইকে ইকুয়ালিটি এক জায়গায় এনে দিয়েছে, সেই জায়গাটাকে তৈরি হচ্ছে সমন সংঘ হচ্ছে জাতি অভ্যাস শেখানো, কখনো না। তার কোনো প্রশ্ন? मैं एक मिनट जरा, जाति के ऊपर समन संघ का एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज, और सबके लिए है, पूरे भारत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। जो हमें ये बता दे पहली जाति कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनी, क्यों बनाई,
कहाँ इसकी बैठक हुई, उसका उद्देश्य क्या था, फिर दूसरी जाति कब बनी, वो पहली जाति से क्यों छोटी थी, कितनी छोटी थी, कितनी मोटी थी, कितनी भारी थी, तमिलनाडु वाली जाति तमिल में कैसे बनी, कर्नाटक वाली जाति कर्नाटक में कैसे बनी, वो शास्त्र कौन सा है जिसमें जाति लिखा हुआ है, वो वर्णन कहाँ है जिसमें जाति के बारे में ज्ञान है या कहीं लिखा हुआ है, वो जाति की लिस्ट कहाँ है, वो पुरानी है, वो कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में, कौन सी किताब में है। हमको किताब ला के दे दो, हमको बता दो, हमको उन व्यक्तियों के नाम बता दो, उन रचयिता के नाम बता दो, जातियों के सबके नाम बता दो, जो चाहो वो नाम ले लो समन सन से सर। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है माइंड ऑफ नोटेशन है, आप जिक्र करोगे तो जाति है और जिक्र नहीं करोगे तो तुरंत जाति है, तुरंत। इसलिए यहाँ जाति का अभ्यास कभी नहीं, पर आप खुद लेके बैठे हुए हो और खुद आपकी जिज्ञासा है तो वो बहुत बलवती और मजबूत हो जाती है। जैसे घोष कहीं नहीं होता, भूत कहीं नहीं होता, आपके दिमाग में होता है। आपको परछाई दिखाई दी तो आपको लगता है कथा कहानी में सुनी है तो डर के मारे बैठे पसीने आने शुरू जाते हैं, वहां कुछ नहीं है। इसलिए बाबा साहब की किताब कास्ट इन इंडिया जेनेसिस एंड मैकेनिज्म किसने पढ़ी है? बाबा साहब ने उसमें कहा है कास्ट इज द नोशन इन द माइंड्स ऑफ मैन। जाति ये मन की उपज है, ये जाति मन में है, फिजिकल नहीं दिखती है। फिर कहते हैं कि जाति का अस्तित्व हमने पकड़ के रखा है। हम जब तक हमारे मन में जातियां रखेंगे, बुद्ध कहते हैं कि मन से जाति इरेडिकेट कैसी होगी, खत्म कैसे होगी, तो कहते हैं मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा पसंदेर भासति वा करोति वा ततो सुख मन में भी छाया पाई। मन सारी चीजों का अगुआ है, मैंने मन में सारा कुछ सॉफ्टवेयर फीड है, मेरे मन में मेरी जाति है तो मुझे तकलीफ हो रही है। समन सम बुद्ध की और दूसरी गाथा होता है कि क्या करना है, न परेश विलोमानी न परेश कथा कथन अतनो अवेख्य कथानी कथानी। वो दूसरे ने जाति निर्माण की होगी, दूसरे ने आपको बुरा कहा होगा, इस पे ऊपर आपको सोचना नहीं है। अतनो अवेख्य, मुझे एक गुना है, अतनो अवेख्य कथानी अकथानी से, मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा ये मुझे सोचना है, तो जाति मन से खत्म हो जाएगी। वरना वो कहते जाति कैसी है, तो कहते हैं कि कास्ट इज द नोशन इन द माइंड्स ऑफ मैन। यू टर्न इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में आप मुड़ो, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट यू हैव टू किल इट। ये जाति का जो राक्षस है ना, ये राक्षस है, इसको आपको खत्म करना होगा। तो बुद्ध ने जो बताया हुआ मन का जो मार्ग है अपनाओ, मन से जाति हटा दो, जाति नीचे गिर जाएगी। हम अपनी जाति को चिपक गए। उपेक का पारमी 10वीं 10th पारामित्र है, उसमें कहते हैं कि मेरे मन में चिपकी हुई और निकलती नहीं है, बट मैं मन का ऑपरेशन करना शुरू कर देता हूँ। जाति डॉक्टर जैसा गंदा हिस्सा निकाल देता है सर्जरी करके, जाति भी हट जाएगी। संग में आओ, जाति वैसे डाइल्यूट होती है और एक दिन वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। संगम में मान साधु साधु साधु। इसी का एक अच्छा उदाहरण भी है कि जब से समन संघ बना, मतलब फिर से उजागर हुआ, ऐसे बताऊंगा मैं, तो 2.5 साल में कम से कम 9 विवाह हुए हैं। एक बच्चा है महाराष्ट्र का, एक बच्ची है वेस्ट बंगाल की, एक बच्चा है उत्तर प्रदेश का, एक बच्ची है राजस्थान की। निकल गया, खत्म होगी। ये परिवर्तन है। साधु साधु। नमो बुद्धाय, स्वामी नमो नमो। मैं जैसे पांडे हूँ, मैं जाकर का आदमी होता है। मेरा क्वेश्चन होता है, बाबा साहेब बोला है पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर ऑफ की, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। समन संघ का ये बात का क्या आंसर देना चाहिए? देखिए, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आप डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एक मिनट जरा इसका सवाल का जवाब, एक मिनट सुरेश, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल की मास्टर की है, अच्छी बात है, कौन मना करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल पावर लेने से पहले सोशल पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, ये बात भी ठीक है, सिर्फ कौन मना करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा कि ऑर्गेनाइज हो जाइए, इसे भी कौन मना करेगा।
अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं या पूरे भारत में आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं, उनसे एक प्रश्न ओपनली पूछ लीजिए। कोई धार्मिक पावर है, कोई मत की पावर है, कोई गुरु की पावर है, कोई राजनीतिक पावर है, कोई सरकारी कर्मचारियों की पावर है, कोई लड़कों की दलबल की पावर है, कोई आर्थिक पावर है, कोई स्पिरिचुअल पावर है। किसी भी पावर को लेने के लिए क्या लोगों की आवश्यकता है? या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना लोगों के ही आपको पावर दे दे? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लोगों की जरूरत ना पड़े और हमें पॉलिटिकल पावर भी दे दे, हमें आर्थिक पावर भी दे दे, हमें सुख भी दे दे, तो उसको ले आओ भाई, संघ भी नमन करे, हम भी नमन करे, काम आसान हो गया। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ईवीएम जिनके कंट्रोल में वो संघ में है। ईवीएम अकेले कुछ नहीं करती, वो भी संघ में चाहिए। तो सर, ऐसा व्यक्ति जब भी मिल जाए आप फोन कर देना, सारे संगी पैर छुएंगे उसके, धोएंगे, नमन करेंगे। पर जब हर चीज के लिए लोग इकट्ठे करने हैं तो पहले लोगों को इकट्ठा करने आज तक हुए नहीं। अगर संघ परमानेंट बन जाता है तो उसकी ताकत समझिए। 2 अप्रैल 18 को जो आपका एट्रोसिटीज एक्ट निकला, ना नेता आया, नेताओं ने तो वो खत्म किया, ना ब्यूरोक्रेट आए, ब्यूरोक्रेट ने उसको अप्लाई किया, ना जुडिशरी आई, उसने हाथ खड़े कर दिए, ना कोई सामाजिक संगठन आए, भाग गए सारे। कौन आया? हम सब लोग सड़क पे इकट्ठे हुए तो क्या बन गया? संघ बन गया। 4 घंटे के लिए टेम्परेरी और अधिकार वापस अपने आप, ना अर्जी दी, ना फर्जी दी, ना किसी के हाथ जोड़े। संविधान को पता चल गया कि ये इकट्ठे हो गए हैं, आपका पेज वापस लग गया। सिखों का संघ बना पड़ा है। कभी सड़कों पे देखा? सबसे ज्यादा जो सम्मेलन हम करते हैं, सबसे ज्यादा रोड पे पीटते हम हैं, सबसे ज्यादा काम हम कर रहे हैं। पर एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हर एक महापुरुष ने ये कहा है, एक ओंकार, यानी एक आकार में रहना है, एक साथ रहना है, संगति करनी है और भजन करना है। भजन का मतलब ही पाली में असेंबली होता है। ये बात नहीं समझ में आ रही हमें। तो हम बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए चैलेंज करते बार बार, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसे कहा। भैया हम तो ये कहते सबने बहुत बढ़िया कहा, पर बिना लोगों के इकट्ठे अगर कोई हो सकता है काम तो बता देना, सब डब्बा बंद, उसके पीछे उसी दिन चालू। वरना इकट्ठे हो जाओ भैया, वरना इकट्ठे नहीं होगे तो बाहर जाओ। अगला क्वेश्चन पूछिए। मेरा नाम शांतनु मंडल, मैं कोलकाता ही रहती हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धा। मेरा 3 छोटा सवाल है। नंबर 1, बाबा साहेब ने 6743 जाति को SC ST OBC ये 3 में लेके आए। नंबर 2 है, जैसे जय भीम बोल के हम पूरा देश के मूल्यवासी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपन समझते हैं, ऐसा अपना समाज के लोग पूरा देश में अभी जो चल रहा है, एक ही पदवी, मतलब मूल्यवासी समाज के सब लोग को एक ही पदवी अगर हो जाए तो हमारा बसना, मतलब हमारा पावर आने के लिए बहुत इजी होगा। नंबर 3 मेरा सवाल है, मैं भूल जाऊंगा सर, एक एक करके आंसर ले लो आप। दादा एक सवाल बताओ। एक एक करके आंसर ले लो, ज्यादा अच्छा बोल। देखो आपने कहा एक पदवी होनी चाहिए, तो समर से बड़ी कोई पदवी हो, इससे अच्छा कोई शब्द हो तो ले आना। समर वर्सेस बमड़ है, आपको लगता है कोई शब्द इससे बेहतर हो तो ले आना सर। ठीक है, पहली बात। और क्या था, दूसरा सवाल पूछे सर। ये 6743 की जाति को बाबा साहब ने 3 में बंटवारा किया, SC ST OBC। ऐसा हिसाब से हम समन। अच्छा सुनिए सर, आपको डॉक्टर अंबेडकर को जिन लोगों ने पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर कभी भी नहीं चाहते थे कि कास्ट रहे, इसलिए उन्होंने हमको सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया। अगर सेपरेट इलेक्ट्रोल हमारे पास होता तो हमको 3 फायदे मिलते हैं कास्ट सब सर्टिफिकेट से। एक, हमको पढ़ाई के लिए वो मिलता है रिजर्वेशन, एक हमको नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है। सर एक मिनट जरा, सर एक मिनट। एक हमको नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है और एक हमको चुनाव लड़ने के लिए रिजर्वेशन मिलता है। इन 3 फायदे जिसको लेने हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, जिसको नहीं चाहिए वो ना बनाए। अगर वो सेपरेट इलेक्ट्रोल हमें रहता हमारे पास में तो हमें तीनों चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर हमारा राइट हमारे लोग तय करते। बाबा साहब कास्ट को जड़ से खत्म करना चाहते थे, पर वो लोग भी चाहते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब कास्ट को जड़ से खत्म कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब की मजबूरी थी कि बाबा साहब को घुटनों पे बैठ के और बहुत ज्यादा मजबूरी में रोते हुए वो जो पूना पैक्ट है वो स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो इलीगल है। उसमें जो गांधी की भूमिका है वो कभी पार्टी था ही नहीं, वो इलीगल है, वो आज भी इलीगल है। पर बाबा साहब मजबूर क्यों थे?
बाबा साहब इसलिए मजबूर थे, एक मिनट प्रसन्नजीत, हेलो, बाबा साहब इसलिए मजबूर थे क्योंकि बाबा साहब के पीछे संघ नहीं था। अगर बाबा साहब का संघ मजबूत होता तो बाबा साहब घुटना वहां पे गट्ठ गाड़ते थे और जो सेल्फ इलेक्टोरल है वो आपके घर होता और आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कास्टों की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह बोले हो जाती वो। सिंपल सी बात है सर। तीसरा क्वेश्चन है, जो देश में हमारे देश में तानाशाही जब आएंगे नेक्स्ट टाइम में, मेरे हिसाब से लगता है 25 में भारत के संविधान आजाद हो जाएंगे, तो अब समन संघ को क्या करना है? सर, तानाशाह जो होता है वो बहुत सारे लोगों को पहले अपनी तरफ अपने फ्लो में बहाता है। कोई अकेला व्यक्ति तानाशाह नहीं होता। तानाशाह आपके माइंड को पहले कैप्चर करता है, फिर अपने तरह से उसको चलाता है। तानाशाह व्यक्ति नहीं होता, तानाशाह वो लोगों को तानाशाह बनाता है। आप अगर इकट्ठे हो जाते हो और समझदार हो जाते हो तो कहाँ तानाशाही होने वाली है? बात ही खत्म है। आपके इकट्ठे होने में हर चीज का सोल्यूशन है। रात को जाके सोचना है इसको और सुबह को फोन करके बताना है कि इकट्ठे होने से ये नुकसान है। एक नुकसान तो बताओ इकट्ठे होने से, सिवाय इसके कि आपको दावत में ज्यादा लोग बुलाने पड़ेंगे बस, और कोई नुकसान और कोई आज खाना कम पड़ेगा ना इकट्ठे हुए थे, भाई ये नुकसान आ गया था। सर, तानाशाह का उदाहरण देता हूँ। 29 अप्रैल 1946 में हिटलर ने आत्महत्या की थी। पता है क्यों? क्योंकि 28 अप्रैल 1946 को मुसोलिनी और उसकी जो ये थी मंगेतर, उसको मार डाला था इटली में। जैसे हिटलर को पता चला कि उसको मार डाला, मैं तो मुखिया हूँ, हेड हूँ, मेरा भी कुछ हो जाएगा, उसने और उसकी मंगेतर ने शादी कर ली और साइनाइड खा लिया। तानाशाह पब्लिक को डरता है। आपको किसने रोका? 1 करोड़ लोग आ जाओ ना, पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ हो ना, SC ST OBC रास्ते पे आ जाओ। कल तानाशाह पूछ कर आएगा, दिल्ली का सैल्यूट मारेगा। आप हो कि आपके बीच में इकट्ठा होने की ताकत नहीं है, सोच नहीं है, और पूछते हो कि तानाशाह आपके ऊपर कुछ करेगा। तानाशाह पब्लिक को डरता है, तानाशाह लोगों की ताकत को डरता है, तानाशाह डरपोक होता है, ये समझ लो। इसलिए इकट्ठा आ जाओ। तानाशाह 2 अप्रैल का उदाहरण दिया इन्होंने। 15 लाख लोग देश के सड़कों पर थे, कोई लीडर नहीं था। उन्होंने एक दिन का संघ बनाया और बोला कि याद रखना, एट्रोसिटी एक्ट हमारा आर्टिकल 17 है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो 15 लाख हो गए, उसके ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1.5 करोड़ हो जाएंगे और 120 करोड़ है हम, पर इकट्ठा नहीं है। उसको पता है कि अलग अलग है, अलग अलग लोगों को हलाके मारा जा सकता है, भीड़ को नहीं। ये किसान आंदोलन का देखो, और ये छत्ता होता है ना मुख्यों का, उसको एक पत्थर मार के देखो, भीड़ देखो सब क्या। মেইন একটা আপনি কোশ্চেন পরে করবেন, একটা সূচনা